students. In this video, we are going to start the next chapter, that is chapter 8, Introduction to QBASIC. What is QBASIC? Right? So the QBASIC is a variant of basic programming language. ठीक है, भी जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी आपकी उसका क्या है कि वेरिएंट है ये QBASIC. ठीक है, उसका एडवांस वर्जन है QBASIC. बेसिक वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर कैमनी एंड प्रोफेसर T.E. Coates of Dartmouth College, right? New Hampshire, USA. It was developed as a language for beginners and was implemented in 1965. ये कैसी लैंग्वेज थी? बिगिनर्स के लिए लैंग्वेज थी और इम्प्लीमेंट किया था इसको 1965 में. At it was a simple and easy understand programming language. It became instantly popular with the beginners who want to learn how to program the computer. ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज थी आपकी. ठीक है, और काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज बन गई विद द बिगनर्स जो क्या करना चाहते थे, जल्दी से जल्दी प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं. ठीक है, कि कैसे प्रोग्राम कोड किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. सिंस इट्स डेवलपमेंट बेसिक हैज़ अंडरगोन मैनी मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रूवमेंट. मीन्स काफ़ी मॉडिफिकेशंस और इम्प्रूवमेंट्स हुए इसके अंदर. मैनी वर्जन्स ऑफ इट्स आर अवेलेबल. One of the most significant version of BASIC is QBASIC, right? Which was developed by Bill Gates and Paul Allen of the Microsoft Incorporation. Later, QBASIC was implemented and modified to enable it to work on the Windows operating system and was introduced एज QBASIC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जब इस लैंग्वेज को QBASIC लैंग्वेज को क्या किया, मॉडिफाई किया गया कि ये आपकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, जो भी विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो, अगर आपको उस पर एनेबल करानी है तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज अ QBASIC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डू वेरियस tasks such as performing calculations, drawing simple and complex graphics, creating computer games and animations also. किस टाइप की लैंग्वेज है ये? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, जैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करानी है या ड्रॉ करना है सिंपल और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को, या क्रिएट करना है कंप्यूटर गेम्स को और एनिमेशंस को. दैट्स वाई वी यूज़ द QBASIC लैंग्वेज, राइट? Starting QBASIC. If the QBASIC is loaded on your computer and is included in the programs menu, start the following steps given here. First is click on start button. First step is you have to just click on the start button and go to the all programs option. Step third is from the list displayed, click on the Microsoft QBASIC program. You have to click on from the list, you have to click on Microsoft QBASIC program. Right, QBASIC program will open and its editor window will be displayed with a welcome message on it. ये जो इसकी जो एडिटर विंडो है वो क्या शो करेगी आपको? वेलकम मैसेज शो करेगी. राइट, देन प्रेस द एस्केप की टू हाइड द वेलकम स्क्रीन. वेलकम मैसेज जो आपको शो होता है उसको हाइड करने के लिए यू हैव टू क्लिक फ्रॉम द कीबोर्ड द एस्केप बटन. राइट, after pressing the escape key, the QBASIC editor window will be displayed with the parts as shown in the picture. Right, so the screen of QBASIC is called an IDE, means Integrated Development Environment. जो आपकी QBASIC की जो स्क्रीन है उसको हम बोलते हैं IDE, means Integrated Development Environment होता है. ठीक है, इसका मीन क्या है कि एडिटिंग और क्रिएटिंग जो है अकाउंट उसकी प्रोग्राम की, किसी भी प्रोग्राम को एडिट करना और प्रोग्राम को क्रिएट करना, वो दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं? इसी एनवायरनमेंट पे, इसी आईडी पे. ठीक है, इस मेन स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? IDE ऑफ QBASIC. सो यू कैन सी इन द पिक्चर्स हियर आर द मेन्यू बार, द फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डिबग एंड ऑप्शंस. राइट, नेक्स्ट इज इट इज़ द वाइट ब्लिंकर दैट इज़ नोन एज द cursor. ठीक है, on the top of the screen here is the title bar, that is the title shows here Microsoft QBASIC. Then the name of the current program file, the shown is untitled. Name of the current program file means आपका जो फाइल का नेम आपने दिया है वो यहाँ पे शो होगा. ठीक है, at the right side of the window here are some scroll bar, the vertical scroll bar.
राइट। वर्टिकल स्क्रॉल बार मीन्स अप एंड डाउन करने के लिए पेज को आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार की नीड होती है, राइट। प्रोग्राम एरिया, इस ब्लू एरिया, जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, प्रोग्राम एरिया, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करोगे उसकी QBASIC की, राइट। नेक्स्ट इज इमीडिएट मोड एरिया। इमीडिएट मोड एरिया वो एरिया होता है आपका जहाँ पे इमीडिएट मैसेजेस आपको शो होंगे। एट द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मीन्स लेफ्ट टू राइट, अगर आपको पेज को मूव कराना है तो यू हैव टू यूज़ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, राइट। लास्ट वन इज स्टेटस बार। द स्टेटस बार will display the status of the window, right. Let's take a good look at the QBASIC interface. It is creating a new program file, means how can you create a new program in QBASIC. Let's see. The first step is click on the file menu. You have to just click on the file menu and new program. और the second option is press Alt F. Alt F की हेल्प से आपको क्या होगा, जो फाइल मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा विद लिस्ट, ठीक है। देन यू हैव टू सेलेक्ट, देन प्रेस द N टू सेलेक्ट न्यू प्रोग्राम। आपको N प्रेस करना है, ठीक है, न्यू प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए। QBASIC स्टेप सेकेंड इज अ न्यू QBASIC ओपन विंडो ओपन अप, राइट। आपकी जो न्यू विंडो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट इज राइटिंग प्रोग्राम्स, मीन्स हाउ कैन यू राइट प्रोग्राम्स इन QBASIC. Let's write a program to display a message on the screen. आपको एक छोटा सा प्रोग्राम राइट कराना है, मैसेज डिस्प्ले कराना है कंप्यूटर स्क्रीन पे. So what would be the coding for this? The print learning QBASIC is fun. सिर्फ आपको print कीवर्ड का यूज़ करना है और आपको डिस्प्ले कराना है मैसेज डबल कोट्स के अंदर learning QBASIC is fun. मीन्स आप डबल कोट्स में अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज या कोई सेंटेंस आप लिख सकते हो, वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट. बट बी केयरफुल टू पुट कोटेशंस मार्क एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मैसेज विच इज़ टू बी डिस्प्लेड, राइट. आपको डबल कोट्स का ध्यान रखना है, ठीक है, यूज़ करते टाइम. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ आउटपुट स्क्रीन. फर्स्ट इज द working area, second is the black portion that is shown is the output area. Here is the output given, learning QBASIC is fun. Here is your output, right. So इस टाइप से आप आउटपुट क्या कर सकते हो, कोई भी आउटपुट प्रिंट करा सकते हो, ठीक है. This is to save the program file. How can you save the particular program file? To save the program file, just type the Alt F and you will get the file menu. फाइल मेन्यू के अंदर आपको क्लिक ऑप्शन सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट. नेक्स्ट स्टेप इज एंटर द फाइल नेम एंड क्लिक ओके. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द फाइल नेम, जिस नेम से भी आप फाइल को सेव करना चाहते हो, ठीक है. यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर फाइल नेम एंड द space you can type any kind of name according to your requirement and click on OK button that is given at the window, right. सो इस टाइप से आप सेव कर सकते हो किसी भी फाइल को, राइट. नेक्स्ट इज़ रनिंग ए प्रोग्राम. रन करने के लिए टू स्टार्ट अ प्रोग्राम यू कैन क्लिक ऑन द रन मेन्यू. रन मेन्यू पे जाओ और वहाँ पे आपको यूज़ करना है स्टार्ट का. तो आपका जो भी प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, रन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स.